chapter 16. Yes, sir. Start your chapter 16, a busy month. Busy month. Chapter number 16. Start reading it. Dear children, it is 3 o'clock in the afternoon. There are Yes. on N-O. क्या पढ़ोगे? N-O. on N-O. no हाँ. There are no C-L-O-U-D-S. What is it? covered Clouds. clouds Clouds means in बादल. the clouds in the sky. Clouds का मतलब क्या होता है? The Clouds का मतलब क्या होता है? हाँ? बादल. बादल. So it is 3 o'clock in the afternoon. दोपहर में 3 बजे हैं. What is the time? Yes, sir. 3 o'clock 3. in the afternoon. दोपहर के 3 o'clock. बजे हैं. Not in the morning. Okay? Yes, sir. And Yes, sir. there is no clouds in the sky. आसमान में बादल नहीं है. आसमान Yes, sir. साफ है. It is not Yes, really sir. busy. Okay? हाँ, आगे Yes, पढ़िए. sir. Read it. The sun is burning. IS क्या होगा? Is हाँ. burning Yes. hot. Hot. The sun is burning hot. How is the sun? How is the sun? Garam. Hot. Garam. Hot. It is burning hot. जल रहा है, आग का गोला है. It's a ball of fire. है ना? Yes, sir. It is 3 o'clock in the afternoon. दोपहर में 3 बजे है. And there are no clouds in the sky. आसमान बिल्कुल साफ है, कोई बादल नहीं है. And sun is burning hot. सूरज अपने पूरे तेज से चमक रहा है ना? Yes, go ahead. बोलो. What happened? म्यूट हो गए बेटा आप म्यूट हो गए. पहले अनम्यूट करो अपने आप को. प्रियांशु सिंह ना? प्रियांशु अनम्यूट करो अपने आप को. Yes, sir. हाँ, अब पढ़ो. The sparrow, dove, and sunbirds have started working in Pairs. हाँ. pairs as they are to make PREPARE क्या पढ़ोगे आप? PREPARE. What is it? prepare. Yes, prepare. Prepare means तैयार, ready. तैयार करना, ready. हाँ, as they prepare. To make this their next some of the birds have ALREADY already made their next not next NEST in some of the next nest हाँ, nest means घोंसले.
The eggs have हाँ HATCHED hatched hatch hatched hatch the parrot parent not parrot Parent. parent Parent. PARENT parent birds हाँ are busy seeding the chicks chicks हाँ C with the different kind of हाँ nest inside. No, look at the spelling. INSECTS. What is it? INSECTS. Insects. Yes, insects. हाँ. And our No, not our. other thing. THER. Other things. Yes. Other things in our country are No. COURT. Court. YARD. What will you say? Courtyard. No, courtyard. COURT. Court. YARD. Yard. Courtyard. Courtyard. Yard. Courtyard. Courtyard. Court. Yard. Courtyard. Yard. What is it? Yes, sir. हाँ बोलिए. Courtyard. Yes, courtyard. Next. Also, there is a baby dove. There is a baby dove. DOVE dove. DOVE क्या होता है? Dove. Dove क्या? No. Dove किसे? There is another egg in the next. Not next, beta. It is NEST. Nest. हाँ, nest. But it has not hatched. देखो अभी हमने इस शब्द को पढ़ा यहाँ पर HATCHED. What is it? बताओ. HATCHED. 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 Yet. अच्छा एक चीज आप देख लो, जब आप रीडिंग करते हो तो कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ कॉमा है, आप उसका ध्यान नहीं देते हो. आई एम गोइंग टू रीड इट. लिसन इट केयरफुली एंड देन आई विल आस्क यू अगेन टू रीड दिस पैराग्राफ. ओके, एक बार मैं इसकी रीडिंग करता हूं, आप ध्यान से सुनोगे प्रियांशु. लेटर आई विल आस्क यू टू रीड दिस पैराग्राफ. ओके, सो लुक एट योर टेक्स्ट बुक एंड अंडरलाइन द वर्ड्स विच यू प्रोनाउंस्ड इन एन इम्प्रॉपर वे. इन शब्दों को जगह अंडरलाइन कर लो जिनको आपने ठीक तरह से प्रोनाउंस नहीं किया. ओके, विच आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड आल्सो. So let me read it first. Dear children, look at your book. What is written in the first line? Dear children. प्यारे बच्चों. Dear children means प्यारे बच्चों. It is 3 o'clock in the afternoon. Now afternoon के बाद आप देख सकते हो फुल स्टॉप अपनी कॉपी में. तो यू शुड टेक अ पॉज हेयर. यहाँ थोड़ी देर आपको रुकना है. जहाँ फुल स्टॉप है वहां थोड़ी ज्यादा देर तक आपको रुकना है. जहाँ कॉमा है वहां थोड़ी देर रुकना है. जहाँ फुल स्टॉप है वहां कुछ ज्यादा देर रुकना है. तो कहाँ हमें रुकना है इस बात का भी ध्यान देना है. तो इट इज 3 o'clock इन द आफ्टरनून.
कैसे पढ़ोगे आप? इट इज 3 o'clock इन द आफ्टरनून, दोपहर के 3 बजे हैं. There are no clouds in the sky. After sky, you can see full stop. There are no clouds in the sky. आसमान में कोई बादल नहीं है. There are no clouds in the sky. The sun is burning hot. The sun is burning hot. और सूरज कैसा है? जल रहा है, बिल्कुल गर्म है. आसमान में बादल नहीं है. आसमान में सूर्य की रोशनी को कौन कम करता है? बादल ही कम करते हैं ना. हाँ, जब आसमान में बादल आ जाते हैं तो क्या होता है? उस समय क्या होता है? सर खूब बारिश होती है. हाँ, बारिश होती है और सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है. यस सर. है ना? सनलाइट बिकम्स डिम. ओके. द सन इज बर्निंग हॉट. अभी यहाँ आसमान में बादल नहीं है तो सूरज पूरे जोर से चमक रहा है. इट इज बर्निंग हॉट, बिल्कुल गर्म है. द स्पैरोज, doves and sunbirds. Sparrows, doves and sunbirds have started working in pairs. अपने अपने कंपेनियन के साथ, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ पेयर्स में स्पैरोज ने, सनबर्ड्स ने और डव ने काम करना शुरू कर दिया है. They have started working in pairs. Okay. As they prepare to make their nest. और उन्होंने क्या काम करना शुरू कर दिया है? What have they started? They have started to prepare the nest. उन्होंने अपने घोंसलों को तैयार करना शुरू कर दिया है. घोंसलों की तैयारी, बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. They have started to prepare their nests. N-E-S-T-S, nest, है ना? Some of the birds have already made their nests. Some of the birds, कुछ पक्षियों ने, have already made, उन्होंने पहले ही बना लिया है. Already means पहले ही तैयार कर लिया. Made their nest, अब उनके घोंसलों को. Some birds have already made their nests. Okay? तो जब भी आप बुक रीडिंग करते हो तो पंक्चुएशन मार्क्स का, फुल स्टॉप का, कामा का थोड़ा ध्यान रखोगे. Some birds have already made their nests. कुछ पक्षियों ने अपने घोंसले पहले ही तैयार कर लिए हैं. In some of the nests, the eggs have hatched. कुछ घोंसलों में से पक्षियों के अंडे हैच किए जा चुके हैं. उनके अंडों से चूजे निकल चुके हैं. है ना? हैच मीन्स क्या होता है? सेना. अंडों को मुर्गियां क्या करती हैं? उनके ऊपर बैठती हैं वार्मथ देने के लिए, उनको, उनसे चूजे निकालने के लिए, उनके चिक्स को बाहर निकालने के लिए अंडों से. इसको हम क्या कहते हैं? हैचिंग कहते हैं. है ना? जो बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं? अपने अंडों में से बच्चों को, चूजों को, चिक्स को बाहर निकालने के लिए क्या करती हैं? उनको गर्म रखती हैं, हैच करती हैं. है ना? जब वो बैठती है तो क्या होता है? उनको अंडों को वार्मथ मिलती है और फिर उनमें से चूजे निकलते हैं. है ना? सो इन सम ऑफ द नेस्ट द एग्स हैव हैच्ड. कुछ घोंसलों में अंडे हैच किए जा चुके हैं, उनसे चूजे बाहर आ चुके हैं. द पेरेंट बर्ड्स आर बिजी फीडिंग द चिक्स. और जो उनके पेरेंट बर्ड्स हैं वो व्यस्त हैं. पेरेंट्स बर्ड्स आर बिजी. अनुज, आई विल टॉक टू यू. लेट मी फिनिश इट फर्स्ट. सो द पेरेंट बर्ड्स आर बिजी. पेरेंट बर्ड्स जो है, जो मम्मा बर्ड्स है, पापा बर्ड्स हैं, वो बिजी हैं, व्यस्त है. क्यों व्यस्त है? इन फीडिंग देयर चिक्स. छोटे बच्चों को, छोटे जो चूजे हैं उनको फीड करने में, उनका पेट भरने में. दे आर फीडिंग द चिक्स विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ
insects and other things. और ये लोग उन चूजों को कैसे फीड कर रहे हैं, क्या खिला रहे हैं उनको? दे आर फीडिंग द चिक्स विथ इंसेक्ट्स एंड डिफरेंट थिंग्स. उनको इंसेक्ट्स खिलाते हैं वो, या दूसरी चीजें जैसे कि ग्रेन्स हो गए, है ना. So in this way, the parent birds who have already hatched their eggs, they have already prepared their eggs, they are now busy in feeding their chicks, and some birds are working to prepare their nest. और कुछ पक्षी अभी घोंसले बना रहे हैं, है ना. इन आवर कोर्ट यार्ड आल्सो, हमारे कोर्ट यार्ड में, हमारे आंगन में भी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर्ट यार्ड? आंगन. इन आवर कोर्ट यार्ड आल्सो, इन आवर कोर्ट यार्ड आल्सो, हमारे आंगन में भी. देयर इज अ बेबी डव, एक कबूतर का बच्चा है. डव कबूतर, है ना. देयर इज अ बेबी डव. देयर इज अनदर एग इन द नेस्ट, और उस नेस्ट में एक दूसरा एग भी है, अंडा भी है. बट इट हैज नॉट हैच्ड येट, लेकिन अभी तक उसमें से चूजे बाहर नहीं आए हैं. अभी उसमें से बेबी बर्ड बाहर नहीं आई है. इट हैज नॉट हैच्ड येट, अभी उसकी हैचिंग की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है. ओके अनुज, टेल मी व्हाट डू यू वांट टू नो? अनुज. सर मतलब जैसे वो बैठते हैं अंडों के ऊपर तो अंडे वो Sorry बेटा, I did not listen you. Will you ask? सर जो अंडे होते हैं, जो जैसे मुर्गियां सर जिस पे मुर्गियां बैठती हैं तो वो अंडे वॉर्म होके अपने आप टूटने लगते हैं. हाँ हाँ. सर जब बैठती हैं तो निकलते कैसे होंगे? हाँ, जब वो बड़े होते जाएंगे बच्चे, अंडों के ऊपर जब चिक्स उन अंडों में बड़े हो जाएंगे तो बाहर निकल जाएंगे. फिर अंडों की जो शेल होती है, आउटर कवरिंग जो होता है, वो टूट जाता है. मतलब अगर वो वॉर्म नहीं करेंगे तो उसमें से बच्चे नहीं निकल पाएंगे. ठीक है. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हैचिंग, है ना. ठीक है. हैच्ड. यस. सो प्रियांशु, विल यू रीड दिस पैराग्राफ वंस अगेन? एक बार पढ़ोगे आप, बट बी केयरफुल हाउ टू रीड. टेक केयर ऑफ द पंक्चुएशन मार्क्स. ओके प्रियांशु, हाँ रीड इट. सर प्रियांशु के बाद मैं रीड कर सकता हूँ? हाँ प्रियांशु पढ़ोगे? सर उसके आगे से पढ़ना है? नहीं, सेम पैराग्राफ जो आपने अभी पढ़ा था, जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया है, आपको वही पैराग्राफ पढ़ना है. Dear children, it is 3 o'clock in the afternoon. बेटा एक मिनट को क्या हो जाएगा था. लिसन मी. इट इज 3 o'clock इन द आफ्टरनून. आफ्टर और नून के बीच में कहीं कोई कॉमा है, कोई पंक्चुएशन मार्क है, कोई फुल स्टॉप है, तो फिर आप वहां पॉज क्यों लेते हो? वहां आपको नहीं रुकना है. जहां रुकना है वहां सिंबल्स दिए हुए हैं आपकी बुक में, या तो कॉमा. देखिए, डियर चिल्ड्रन, इसके बाद एक कॉमा है. कैन यू सी इन योर टेक्स्ट बुक? डियर चिल्ड्रन, देयर इज अ पॉज, a small break in the sentence. Yes, sir. And it is shown by a comma. Dear children, you have to take a small pause. यहाँ थोड़ी देर के लिए आपको रुकना है ना. It is 3 o'clock in the afternoon. No pause in between the sentence. बीच में कहीं रुकने की आवश्यकता नहीं है. It is 3 o'clock in the afternoon. What will you say? बोलो. 3 o'clock afternoon. In the afternoon. It is 3 o'clock in the afternoon. Yes, sir. बोलो. 3 o'clock the afternoon. Listen me.
and look at your textbook. It is 3 o'clock in the afternoon. It is 3 o'clock in the afternoon. Okay. There are no clouds in the sky. There are no clouds in the sky. The sun is burning hot. The sun is burning hot. The sparrows. The sparrow doves Just wait, and just wait, birds बेटा, just wait. देखो स्पैगोज के बाद कॉमा है, इसलिए मैंने वहां पॉज लिया, इसलिए मैं वहां रुका था. The sparrows. Follow the me. sparrows, Doves and sunbirds. doves and sunbirds have हाँ. started working in Pairs. pairs. Pairs means जोड़े, दो दो का समूह, है ना? Sparrows, Yes, sir. doves and sunbirds have started working in pairs as they prepare to make their nests. Yeah. Read it once. Some शुरू से सेकंड पैराग्राफ फिर से पढ़ो आप. सेकंड स्टैंजा, द स्पैरोज से. the sparrow doves स्पैगो डव्स नहीं है बेटा, स्पैगोज अलग है, डव्स अलग है, और दोनों के बीच में पॉज है. the sparrows, हाँ. doves and sunbirds have started working in pairs as they prepare to make their next नॉट नेक्स्ट. nest. देखो एक चीज जान लो आप, NEXT इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, और NEST इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट. ये नेक्स्ट मीन्स अगला. NEXT नेक्स्ट, इसका मतलब होता है आगे वाला, अगला, नेक्स्ट. और ये है नेस्ट. नेस्ट घोंसला. बोलिए. Some of the birds have already make their next नॉट नेस्ट. नेस्ट. नेस्ट कौन नहीं बोलना है, नेस्ट. क्या बोलोगे? नेस्ट. नेक नहीं, नेस्ट. nest. हाँ, नेस्ट. यस. In some of the next नो, सम ऑफ द नेस्ट. नेक्स्ट नहीं बेटा, नेस्ट. NEST सौ का साउंड आएगा, एक्स का साउंड नहीं आएगा. जहां एस है, नो, जहां देखो एस है या एक्स है, ये एक्स है, यहाँ एक्स का साउंड आएगा. यहाँ पर एस है, ये क्या है? next नो, next ये नेक्स्ट है. NEXT नेक्स्ट होगा. NEST क्या होगा? nest नेस्ट. आपकी बुक में क्या लिखा है? nest. हाँ. रीड इट वन नाउ. Some of the birds have already यस. made their HATCHED hatched. HATCHED hatched. हाँ. the parent bird are bees. Busy. BUSY busy. Busy means व्यस्त.
आपके चैप्टर का नाम ही है बिजी मंथ, एक ऐसा मंथ जिसमें सब लोग बहुत बिजी हैं. एवरीवन इज बिजी इन डूइंग समथिंग एल्स. busy हाँ, बिजी, यस. feeding the chick, फीडिंग द चिक. different kind of next side inside and our things and other things in our courtyard also there. देयर के बाद कोई पॉज है बेटा. आल्सो और देयर को हमने आपने जल्दी एक साथ पढ़ दिया, जबकि आल्सो के बाद कॉमा है. आल्सो के बाद Also आप रुके हो देयर के बाद. इन आवर कोर्ट आल्सो. ठीक से पढ़ो इस लाइन को. in our courtyard also there is देयर के बाद कोई कॉमा है, फुल स्टॉप है. there is no sir there is a baby dove. डव. देयर इज अ बेबी डव. क्या बोलोगे आप? Baby dove. बेबी डव. वहां एक बेबी कबूतर है. डव, बेबी डव. हाँ. There is another egg is in the nest but it हैज. इट हैज. has not hatched yet. Yet. It has not hatched yet. है ना? Okay. So who will read next? एक बार जरा सुनो आप. इसी पैराग्राफ को मैं बोलूंगा. अनुज will read. अनुज, where are you? अनुज. Sir, yes sir. हाँ पढ़ो. And Priyanshu, listen it. Sir यही और just wait. सर यही वाला पैराग्राफ. हाँ इसी पैराग्राफ को पढ़िए एक बार. Yes sir. Dear children, it is 3 o'clock in the afternoon. There are no clouds in the sky. The sun is burning hot. The sparrows, dove and sunbirds have started walking in pairs as they prepare to make their nests. Some of the birds have already made their nests. In some of the birds are busy feeding the chicks with different kinds of insects and other things. In our courtyard also, there is a baby dove. There is another egg in the nest, but it has not hatched yet. Yes. So you can see here that how he read the textbook. While reading, you should take care about the punctuation marks also. Priyanshu Singh, and please improve your reading skill. Try to read your textbook at your home, and you can send me your recording of the reading also. Even अगर आपको लगता है कि आपने कहीं कुछ अच्छी रीडिंग की है तो आप उसको रिकॉर्ड कीजिए. आप इस पैराग्राफ को रीड करके आप मेरे पास व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो. ओके प्रियांशु. प्रियांशु, will you send me? हाँ प्रियांशु, are you listening? अनम्यूट करो अपने आप को पहले. Yes sir. हाँ तो आप क्या करोगे? बेबी बिजी मंथ का जो पैराग्राफ है रीड करेंगे. हाँ और रिकॉर्ड कर सेंड कर देंगे. हाँ और सेंड करोगे मेरे पास. ओके
उसमें आपका Sir, पेज नंबर sir. मेंशन होना चाहिए, आपने कौन सा पेज नंबर रीड किया है किस सब्जेक्ट में, ठीक है। ओके सर। ओके, सर तो ये जो हमने पैराग्राफ Sir. पढ़ा था अभी, हाँ, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन इट। सर ये जो जिसमें ये बर्ड्स बिजी होती है वो अप्रैल का महीना होता है, लेट अस सी, अप्रैल का। हाँ, लेट अस सी। ये देखिए, आप ये देखो, जो हमने ये हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ये चैप्टर किस फॉर्म हाँ, में, तभी ऊपर लेटर है लिखा ये चैप्टर क्या है, है लेटर। एक लेटर के फॉर्म में, और इस लेटर को लिखा